So this is what is the Urey and Miller experiment which is in front of you, my dear. Urey and Miller's experiment in support of chemical evolution. Stanley L. Miller and his teacher Harold C. Urey provided the first experimental evidence in support of apparent theory of chemical evolution after 30 years of its presumption, my dear. They tested this hypothesis through an experiment commonly called as Urey and Miller's experiment, mere bachcho, and it was being done in 1953. So as a part of their experiment, they designed an apparatus and simulated the entire prebiotic condition, mere bachcho. So the very first thing which we are going to see here is an experimental setup, mere bachcho. Urey and Miller spark discharge apparatus is a closed system, my dear, and it's a closed system of a glass, mere bachcho, except for tungsten which was used as an electrode, mere bachcho. It has a large spark discharge glass, जैसा आप देख सकते हैं. Not only that, this chamber was fitted with tungsten electrodes and a flask for water boiling. ये जो boiling water आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी जो है वो इन्होंने properly flask लगाया हुआ है. A side tube connected to a vacuum pump, a cooling jacket called as condenser basically, and a U-shaped trap. तो मैं आपको बता दूं ये वैक्यूम पंप क्यों यूज किया गया. वैक्यूम पंप इसलिए यूज किया गया था क्योंकि इसके अंदर जितना भी एयर होगा सब बाहर खींच लो एंड जस्ट मेक समथिंग कॉल्ड एज वैक्यूम. ये पहला पॉइंट. दे फर्स्ट इवैक्यूएटेड द एंटायर, मेरे बच्चों, एंटायर apparatus एंड मेड इट स्टराइल, माय डियर. पहला काम इन्होंने ये किया. वाटर वॉज पार्शियली एडेड टू अ फ्लास्क. यहां पे not only that, there was something called as mixture of methane, ammonia and something called as hydrogen, MAH. मैं ऐसे याद कराता हूं, MAH 1:2:2. So it was MAH 122, याद रखना. Methane 1 part, ammonia 2 part and hydrogen 2 part was taken and it was being slowly passed through the stopcock. यहां पर ये वैक्यूम एक बार पूरा मतलब क्रिएट करने के बाद धीरे धीरे इस गैस को जो है वो पास करना चालू किया. एंड दिस वाज डन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर. वाटर इन द फ्लास्क, यू नो, दिस वाटर इन द फ्लास्क जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इट वाज, यू नो, इसको धीरे धीरे हम लोग बॉइल करना चालू कर दिए और वाटर वेपर हम लोगों ने तैयार किया फॉर अ रिएक्शन. This was a stimulating, I mean मैं आपको बता दूं, it was a simulation, it was not a stimulation, it is simulation of an ocean. हमने यहाँ पे ओशन तैयार करने की कोशिश की. हमने मतलब मिलर और यूरे ने ओशन तैयार करने की कोशिश की. एंड लेट मी टेल यू, इन्होंने ये जो गैसेस डाला तो यहाँ पे वाटर वेपर भी आ गया, मीथेन आ गया, अमोनिया तो था ही, H2O आ गया और H2 आ गया. ये सारी चीजें जब मिक्स किया इन्होंने, and then they provided a very high electric spark of 75,000 volt. This mixture was exposed. मैं आपको बताऊं ये इसको expose किया गया continuously to the electric discharge. It was simulating something called as lightning, मेरे बच्चों. So ये lightning हो रही है यहाँ पे water vapor भी आ रहा है, पूरा entirely area vacuum है, and this was done for several days, मेरे बच्चों. This caused the gases to interact with each other. Later the mixture of gases was allowed to condense, मेरे बच्चों. अब ये condense कैसे होंगे? It will be passing through a condenser, right? Please याद रखना what it will be passing through a condenser, and at that moment the condensed gas is being showing something called as a liquefied mixture. This liquefied mixture was collected in a, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये liquid water in trap इस जगह से कलेक्ट किया गया. And this thing was in a bottom of the apparatus. So ये काम किया गया यहाँ पे. अब observation, the trapped product was analyzed for its content and it was being found that variety of simple organic compound, especially amino acid and sugar, were formed. आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है? आप यहाँ पे मीथेन लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, वाटर लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, आप यहाँ पे 75,000 वोल्ट का जो है वो स्पार्क देते हैं और आप कुछ दिनों तक इसको चलने देते हैं. फिर एंटायर गैस कंडेंस होती है, यहाँ कंडेंसर में वो ठंडा होता है और फिर बाद में यहाँ पे नीचे वो मटेरियल आता है.
this liquid is being taken and it is being analyzed, and guess what you see, my dear? What you see is an amino acid and a sugar. You know what was the significance of this entire process? Using a spark discharge apparatus, Urey and Miller demonstrated the formation of amino acid, sugar and other simple organic compound by recreating the condition, मेरे बच्चों. और कौन सा condition, my dear? ये condition that might have prevailed on a primitive earth, you know, in the laboratory, मेरे बच्चों. Then what came is something called as inference, मेरे बच्चों. अब आप inference के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरे एंड मिलर प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने दिखाया है, दे प्रोवाइडेड अ वाइटल प्रूफ दैट essential building blocks, basically nucleotides, amino acids and many more, are the they were the first compounds to be present in a living organism and could have been formed on a primordial earth. The synthesis of first protein was non-enzymatic in nature, मेरे बच्चों. इसका आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है जो आप ये सोच रहे हैं. इसका जो पहला मटेरियल मिला, ये जो प्रोटीन फॉर्म हुआ रहेगा एंड ये जो मटेरियल फॉर्म हुआ रहेगा, ये मटेरियल जो है वो इट वुड बी, मैं आपको कहूं कि इट वाज नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस. अब आप समझ सकते हैं कि जब मैं कहता हूं नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि पहली बार कोई ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसके अंदर एंजाइम यूज नहीं हो रहा है. इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थियरी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. बेसिकली पेज नंबर 128 का कॉन्सेप्ट है ये. कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर हमको क्या बताती है मालूम मेरे बच्चों? थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इस थियरी के 3 कॉनोटेशंस थे, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे आर क्रिएटेड एज सच. ऐसे ही बना दिया उनको, ठीक है ना. सेकेंड नंबर, द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन वॉज डन. मतलब पुराने जमाने में भी उसी टाइप के लोग और बिना एडेप्टेशन के लोग थे, और आज भी वही लोग और बिना एडेप्टेशन के वो लोग हैं, और फ्यूचर में भी यही लोग रहेंगे. कोई एडेप्टेशन फ्यूचर में होगा नहीं. ये दूसरा कॉनोटेशन था. एंड दे विल बी सेम इन फ्यूचर ऑल्सो. तो ये सिस्टम इन्होंने रखा. और जो थर्ड कॉनोटेशन था उनका, वो था कि ये जो अर्थ है वो 4000 ईयर्स पहले ही जो है वो फॉर्म हुई मेरे बच्चों. सो जब ये 4000 ईयर्स पहले ही जब ये फॉर्म हुई तो क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि ये जो आइडियाज है ना, इसको चैलेंज किया गया मेरे बच्चों. 19th सेंचुरी में इट वाज बीइंग चैलेंज्ड बाय मेनी ऑफ. सो हियर इज समथिंग कॉल्ड एज चार्ल्स डार्विन, बेस्ड ऑन एन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयेज. ही वाज ऑन अ सी वॉयेज इन अ सेल शिप कॉल्ड एज HMS बीगल मेरे बच्चों. He moved all around the world and what he saw was great thing. He concluded that the existing species or existing organisms or existing living form, they share a similarities to varying degrees, my dear. And that too not only among themselves but also with the life form that had existed millions of years ago, my dear. And many such life form do not exist anymore. ऐसे पुराने फॉसिल के जो एनिमल्स के जो फॉसिल्स थे, उन फॉसिल्स से भी मैच होते हैं हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा डार्विन ने बोला. डार्विन ने ये बोला कि आजकल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन दे शो सिमिलैरिटी एंड today's present organism also shows some amount of similarity to the fossils which are present or the animals or plants which were there at the past time. मतलब एनिमल का एनिमल से और प्लांट का प्लांट से जो है वो lineage मिल जाता है उनको, या फिर there is something called as similarities is being seen in these organisms. Not only that, there had been extinctions of different life forms in the year gone by just as a new form of life arose. जैसे जैसे नए लाइफ फॉर्म आते गए, पुराने लाइफ फॉर्म्स जो है वो एक्सटिंक्ट होते गए इन अ डिफरेंट पीरियड ऑफ अ टाइम. हमने इस पीरियड को, पूरे एंटायर पीरियड को जो है वो एपॉक, एरा, पीरियड्स में बांट के रखा है. एंड दिस इज हिस्ट्री ऑफ अर्थ में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा.
एक और खास बात कि देयर हैड बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म, ये लाइफ फॉर्म में ग्रेजुअल इवोल्यूशन तो हुआ ही है, ऐसा वो मानते हैं। ऐसा उनको कुछ प्रूफ भी मिल जाता है, बेसिकली द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मैं डिस्कस तो करूंगा इसके बारे में। नाउ पॉपुलेशन, एक और खास बात उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन हैज बिल्ट अ वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत खास बात उन्होंने बताया कि बिल्ट इन वेरिएशन होता है मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइन को ट्राई करो समझने का कि पॉपुलेशन हैज अ बिल्ट इन वेरिएशन, मतलब उनके पास खुद का एक वेरिएशन का पूरा फिनोमिनन लेके चलते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इट्स अ बिल्ट इन वेरिएशन होता है, मतलब वो वेरिएशन जो है वो आ जाता है उनके अंदर, ऐसा वो ये कह रहे हैं यहां पे। एंड ये जो बिल्ट इन वेरिएशन होता है मेरे बच्चों ना, दिस हेल्प्स इन सर्वाइवल एंड दिस हेल्प्स टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस मेरे बच्चों। अब ये जो बिल्ट इन वेरिएशन मेरे बॉडी के अंदर है, it is very much important when there is a harsh climate, when there is a scarcity of a food, when there is no proper physical factors, adverse physical factors हमारे सामने आ जाते हैं। So this built in variation, जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेरिएशन आया है आज से 50 लाख ईयर्स पुराने या फिर 200 करोड़ साल पुराने या फिर 100 करोड़ साल पुराने जो ऑर्गेनिजम्स को मैं देखूं और अभी के जो ऑर्गेनिजम्स को देखूं, तो क्या मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं? तो यस, देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ चेंजेस हैड बीन टेकन प्लेस। So these changes, this built-in variation helps to survive in harsh climate, food scarcity or various adverse physical factors. और जो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा, it will be moving out from that entire world. वही स्पीशीज बार बार जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है जो इस पूरे पैटर्न को, वो बिल्ट इन वेरिएशन जब उनके अंदर नहीं आता है, सो दे मूव आउट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, मींस दे आर डेड, दे आर बेसिकली एक्सटिंक्ट। एंड देन वन मोर पॉइंट, बाय हिज work we come to understand that there is something called as fitness. Now fitness is here relating to reproductive fitness मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So according to Darwin, the fitness which he is referring, या he was referring, was ultimately and only to a reproductive fitness मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड उन्होंने ये भी कहते थे कि those who were better fit in an environment मेरे बच्चों leave more progeny than others, these therefore will survive in a future and hence will be selected by a nature, and this phenomenon was termed as a natural selection and implied it as a mechanism of evolution. तो ये क्वेश्चन नीट में आने का चांसेस है कि who is the one who is dealing with the implication of mechanism of evolution. So it is something called as, आप समझ ही गए रहेंगे, it is something called a natural selection मेरे बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि अल्फ्रेड वॉलेस, he was a naturalist। याद रहे, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो नेचुरलिस्ट थे या फिजिसिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे या इकोनॉमिस्ट थे, तो प्लीज इस बात को भी जो है वो अपने दिमाग में बिठाइए कि मिस्टर अल्फ्रेड वॉलेस वाज अ नेचुरलिस्ट and he was the one to work in Malay archipelago. Now what is Malay archipelago? It is archipelago, का मतलब होता है group of the islands मेरे बच्चों। So Malay archipelago, it's a group of an island जो present है, and had he was also क्योंकि डार्विन का डिस्कवरी जो है वो इस एक रीजन में चालू था, उसी समय अल्फ्रेड रसल वॉलेस का भी जो है वो सेम टाइप का डिस्कवरी चालू था, एंड ही हैड कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिकॉग्नाइजेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स रिकॉग्नाइज हो सकते हैं अपेरेंटली फटाक से, ये भी वो कहते थे। और वो ये भी कहते थे कि ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर मेरे बच्चों। However, these ancestors were present at different period of a time. अलग अलग पीरियड ऑफ अ टाइम में, अलग अलग पीरियड ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, इपॉक्स, एरा, पीरियड, ऐसे टाइम पे थे। और द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ
क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। जिस तरीके से कॉन्टिनेंट्स का मिलना हुआ, कॉन्टिनेंट्स का एक दूसरे के से दूर जाना हुआ, ये सारे फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई मीन ये दीज वर द माइलस्टोन विच वाज कीपिंग biological history of the earth. A common permissible conclusion is that the earth is very old, not thousands of years as was thought earlier, but it is billions of year old मेरे बच्चों। तो आपको क्या लगता है कि is there any evidences of evolution मेरे बच्चों? So let us discuss that what are the evidences of evolution. Okay बच्चे लोग, so now what we are going to start is something called as evidences for evolution. जब आप evidences of evolution या evidences for evolution आप ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आप देखना चाहेंगे वो होगा fossil. Now what do you mean by fossil, my dear? It is a remains of hard parts of life forms. It could be bone, it could be skull, it could be jawbone, right? So ये सारी चीजें it can be found in a rock. Now this if you see a rock, these rocks are formed in the form of sediments. एक layer, फिर उसके बाद दूसरा layer, फिर तीसरे layer, फिर चौथा layer, ऐसे layers to layers form होते हैं। And if that layer अगर कोई organisms फंस जाए या रह जाए तो उसके ऊपर और धूल जमना चालू होगी, and then the entire rock will form and the organism will get pressed in it, my dear. So rock from sediments and a cross section of earth crust indicates that the arrangement of sediment one over the other during the long history of the earth will show you something called as fossil मेरे बच्चों। Not only that, different aged rocks को अगर आप देखेंगे तो इनकी जो सेडिमेंट्स आप चेक करेंगे, तो जितना नीचे के सेडिमेंट्स को आप चेक करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मिलेगा, और जितना आप ऊपर की तरफ चेक करेंगे उतना ज्यादा आपको जो है वो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ठीक है। नाउ दे कंटेन द फॉसिल, दिस सेडिमेंट कंटेन द फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट्स मेरे बच्चों। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, माय डियर। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, यहां पर देखिए, ये मेरे बच्चों ये देखिए। नाउ दिस इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड द लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इट इज लाइक क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इनिशियली इट स्टार्टेड विद ब्रैकियोसॉरस एंड ब्रैकियोसॉरस डायरेक्टली गेव राइज टू टायरानोसॉरस मेरे बच्चों। तो जब आप टायरानोसॉरस को देखते हैं तो ये टायरानोसॉरस इज अ मीट ईटिंग डायनासोर, माय डियर। अब यहां से एक और निकलता है, इट गोज टू समथिंग कॉल्ड आर्कियोप्टेरिक्स एंड आर्कियोप्टेरिक्स इन फ्यूचर विल गिव राइज टू समथिंग कॉल्ड एज बर्ड मेरे बच्चों। तो दूसरी तरफ आप देखते हैं तो आपको एक लीनिएज क्रोकोडिलियन की दिखेगी। ध्यान रहे यहाँ पे इट इज क्रोकोडिलियन डिलियन करके लिखा हुआ है, आप प्लीज इसको पढ़िएगा। उसके बाद होगा आपका यहाँ पे टेरानोडॉन, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ रेप्टाइल विच लुक्स लाइक अ बर्ड। अगर एक तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे आपको स्टेगोसॉरस मिलता है, और एक लीनिएज आप देखेंगे तो ट्राइसेराटॉप्स करके यहाँ पर जाएगा। सो बेसिकली ये लोग ये बताना चाहते हैं कि दीज डायनासोर्स हु गॉट एक्सटिंक्ट, यहां से जो लीनिएज चली, यहां पे व्हाट केम वाज बर्ड, यहां से जो लीनिएज चली व्हाट केम वाज समथिंग कॉल्ड एज क्रोकोडाइल मेरे बच्चों। सो ये बात आप प्लीज याद रखना मेरे बच्चों। सो व्हाट इज दिस? दीज दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। सो आपके सामने जो अभी दिखा, इट वॉज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज एन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डायनासोर्स। मैं आपको बताऊं, रिसेंटली एक बहुत जबरदस्त डिस्कवरी हुई थी। उसको लोग समझते थे कि इट वॉज अ बर्ड, बट इट वॉज अ रेप्टाइल हु वॉज हैविंग अ फेदर लाइक स्ट्रक्चर। सो जरा प्लीज पता लगाइएगा, ये पिछले वीक की ही डिस्कवरी है मेरे बच्चों। सो द स्टडी ऑफ अ फॉसिल, मैं आपको बता दूं, इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर indicates the geological period in which they existed. अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड होता है, सीनोजोइक एरा, प्रोटरोजोइक एरा, अलग अलग टाइप के एराज होते हैं, तो वहां पर ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। द स्टडी शोज द लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल स्पैन्स। ये बहुत बड़ी बात है। ये
ये स्टेटमेंट ये कह रहा है आपको कि आपको मैं बता दूं कि फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, सर्टेन स्पैन ऑफ अ टाइम के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट आता है और उस समय में लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स उस टाइप के ढल जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, टुडे हर जगह यू कैन सी एंजियोस्पर्म्स. और आप मानिए या मत मानिए, आपके फूड का 99.9% योर डिपेंडेंसी इज ऑन एंजियोस्पर्म्स. बट एंजियोस्पर्म्स आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट. इसके पहले एल्गे था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, जिम्नोस्पर्म्स थे. सो ट्राई टू इमेजिन दैट वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन एल्गे केम इन अ पिक्चर, all the organisms which would have been formed, their उनका जो खाने का तरीका होगा और वो जो खा रहे होंगे वो दाल चावल रोटी भाजी नहीं खा रहे होंगे. दे वुड बी ईटिंग एल्गे. और उसके बाद के जो लोग आए, एल्गे वाले जो हर्बीवोर्स होंगे, प्रोबेबली वो लोग ब्रायोफाइट्स नहीं खा पा रहे होंगे एंड दे वुड हैव डाइड. जो ब्रायोफाइट्स खा पा रहे होंगे वो टेरिडोफाइट्स नहीं खा पा रहे होंगे. वी सी दैट वो ट्री वाले मैमल्स आ गए, फिर बाद में वो कुछ लोग जो ट्री पे रहने लग गए. बट दिस फिनोमिनन इट स्टार्टेड विद समथिंग कॉल्ड एज टेरिडोफाइट. अब टेरिडोफाइट में भी मैंने एक ही ट्री देखा है, सयाथिया. जिम्नोस्पर्म में बहुत सारे ट्रीज हैं, एंजियोस्पर्म में बहुत सारे ट्रीज हैं. तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म ऑल्सो स्टार्टेड इवोल्यूटिंग, माय डियर. मेरे कहने का मतलब ये है, राइट. नॉट ओनली दैट, आप अगर यहां पर देखें तो न्यू लाइफ अराइजेस एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ मेरे बच्चों. एंड ऑल दिस कॉल्ड इज अ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस मेरे बच्चों. सो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस आर एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन फॉसिल. different type of a fossil, different type of a fossil can lead to different type of a links. So it also deals with something called as connecting link मेरे बच्चों. Now let us see something called as a comparative anatomy and morphology. इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. Now comparative anatomy and morphology क्या शो करती है? It is completely based upon similarities and differences among the organisms मेरे बच्चों of today and those that existed year ago. Such similarities can be interpreted, my dear. इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं to understand whether common ancestor shared or not. तो क्या कोई कॉमन एंसेस्टर किसी के बीच में था, ये आपको तब पता चल पाएगा जब आप दोनों आज के जमाने के ऑर्गेनिज्म और पुराने जमाने के जो ऑर्गेनिज्म जो फॉसिल बन गए उनके बीच में आप सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस जो भी आप ढूंढना चाहो, ढूंढने के बाद यू कैन गिव अ वेरी प्रॉपर स्टेटमेंट और यू कैन इंटरप्रेट दैट व्हिच टाइप ऑफ इवोल्यूशन वुड हैव अकर्ड इन दैट ऑर्गेनिज्म. देयर इज वन मोर फिनोमिनन. आई नीड टू गिव यू एन एग्जांपल. सी आज आप अभी जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, इस टॉपिक का नाम दो तरीके से लिया जाता है. होमोलॉगस ऑर्गन नाम सुना होगा आपने, और मैं एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा एनालॉगस ऑर्गन. ठीक है. सो होमोलॉगस ऑर्गन को पढ़ने के लिए कैसे देखने वाले, जरा देखो प्लीज. यहां पे व्हेल्स, बैट, चीता, ह्यूमन, आई मीन ऑल द मैमल्स, दे शेयर सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोरलिम्ब. मीन्स दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमरस. अच्छा, वहां पे मैंने लिख रखा होगा दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमरस, दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ रेडियस अल्ना, दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस. ये सारी चीजें जो है वो इनके फोरलिम्ब में मिलेगी. दो दिस फोरलिम्ब परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन इन दिस एनिमल बट दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल फीचर्स या सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. सो सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब ओरिजिन हो गया सेम, ओरिजिन हो गई सिमिलर एंड द फंक्शन बिकेम डिफरेंट. सो जब कभी भी आपको ओरिजिन मिले सिमिलर और फंक्शन मिले डिफरेंट तो उसको कुछ ना कुछ कहा जाता है. Such type of organs are basically termed as homologous organ. And these are the type of an organ which are showing you a phenomenon called as adaptive radiation, my dear. अब adaptive radiation वाला जो टॉपिक है वो मैं और अलग से लेने वाला हूं, लेकिन आप यहां पर एक वर्ड देख सकते हैं, इसका नाम है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. Now what do you mean by divergent evolution? अब आप देखिए कि in these animals there is a same structure, मतलब anatomical structure origin same है, same structure developed along different directions.
So due to the adaptation to different needs, what happened my dear, यहाँ पे कि हर इस ऑर्गेनिज्म में उसका फंक्शन, जैसे हॉर्स में उसका फंक्शन है रनिंग, वेल में उसी फोरलिम का फंक्शन हो गया स्विमिंग, बैट में उसी फोरलिम का फंक्शन हो गया समथिंग कॉल्ड एज फ्लाइंग, एंड दैट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज अ पटेजियम. बैट के अंदर उसको पटेजियम बोलते हैं. सो दिस इज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन. मेरे बच्चों में आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे, ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहां पे. दिस इज अ मैन, दिस इज अ चीता, वेल, बैट. बैट का फोरलिम गॉट कन्वर्टेड इनटू पटेजियम एंड वाज हेल्पफुल इन फ्लाइंग माय डियर. वेल का ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर स्विमिंग, चीता का ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर रनिंग, मैन का ये फोरलिम जो फॉर्म हुआ इट इज फॉर ग्रिपिंग द थिंग्स. मेरे बच्चों तो आप इस बात को अच्छी तरीके से देख सकते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल फॉर और एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल. अब देखिए प्लांट के ऊपर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं. यहां पे नाउ यू कैन सी अ थॉर्न हियर माय डियर. जब आप यहां पे थॉर्न का बात करते हैं ना मेरे बच्चों, थॉर्न, सो दिस थॉर्न इज नथिंग बट अ स्टेम. बट आप देख सकते हैं ना कुकुरबिटा, you know here the stem had been got converted into tendril. So here this is a stem which is whose function is to take a grip on a plant or any other host. अब host ना बोल के यहाँ पे मैं any other support बोलूंगा जहां पर ये गोल गोल घूम जाते, और यहाँ पे ये thorn, this thorn is there in order to deal with two things. The one which it deals with avoids transpiration, and second point जो होता है वो it deals with something called as protection from the herbivore animals, या फिर protection from the one who are termed as browsers, you know. तो browsers जो होते हैं उससे प्रोटेक्शन लेने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं मेरे बच्चों. तो आप ये देख पा रहे होंगे मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर या होमोलॉगस ऑर्गन. मेरे बच्चों होमोलॉगस ऑर्गन शब्द को याद रखना मेरे बच्चों. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको प्लांट के लिए भी बताया है, तो प्लांट के लिए भी आपको समझ के लेना होगा कि ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होमोलॉगस मेरे बच्चों. यू नो होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री माय डियर. And the example for, you know, I can give you more example like heart का example of, you know, vertebrate. तो vertebrate heart and vertebrates का brain, you know, ये दोनों as an example, they are very good example for, you know, brain goes on, you know, getting advanced. हार्ट में जो है वो पहला 2 चैम्बर्ड, फिर 3 चैम्बर्ड, फिर 3.5 चैम्बर्ड, और फिर 4 चैम्बर फॉर्म कर लिया मेरे बच्चों. सो ऐसे ही आपको थॉर्न और टेंड्रिल्स में भी दिखेगा. Now thorn is of bougainvillea and tendril is of cucurbita. मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चे, thorn of bougainvillea is also it is somewhat tilted like this, ऐसे होता है. तो ऐसे लोग को हम लोग स्क्रैम्बलर भी बोलते हैं. तो ये शब्द आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कहीं ना कहीं आपको सुनने जो है वो मिलेगा. So they are the one who represent homology, my dear. So homology is based on divergent evolution, whereas analogy refers to, you know, the situation is exactly opposite, my dear. For example, you know, wings of butterfly and wings of bird, you know, they look alike but they are not anatomically similar मेरे बच्चों. वो similar नहीं होते मेरे बच्चों. अब आप बोलोगे सर बर्ड का विंग्स और बटरफ्लाई का विंग्स फंक्शन तो दोनों सेम करता है, लेकिन एनाटॉमिकली वो लोग सेम नहीं है. सर आपको कैसे पता? अरे भाई, बर्ड के विंग्स में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ बोन, एंड अगर आप ध्यान से देखें बटरफ्लाई के विंग में विल यू सी अ बोन? नो. सो इसका मतलब क्या हुआ यहां पे? इसको हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. क्या हो गया मेरे बच्चे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मेरे बच्चों. दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन माय डियर. अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बर्ड है या फिर ये जो बटरफ्लाई है, दोनों काम फ्लाइंग का ही करते हैं मेरे बच्चों. बोथ ऑफ देम परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ फ्लाइंग, बट बर्ड के विंग्स में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ बोन, सो दे आर एनाटॉमिकली डिफरेंट. एंड बटरफ्लाई के विंग्स में देयर इज नो बोन, सो दे आर नॉट, they are the one who are not containing bone in them.
सो ये चीज भी आपको समझना होगा. एंड सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, एंड दिस एनालॉगस स्ट्रक्चर गिव राइज टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. दो डिफरेंट चीजें एक ही काम कर रही है तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया. ठीक है, अब एक टाइप का ही चीज अलग अलग काम कर रहा है तो इट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मेरे बच्चों. सो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फ्रॉम अ सेम फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड हेंस हैविंग सिमिलैरिटीज. नाउ अदर एग्जांपल ऑफ एनालॉजी और भी दे दूं, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स मेरे बच्चों. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन मेरे बच्चों. अब डॉल्फिन इज अ मैमल एंड पेंगुइन इज अ बर्ड, बट दोनों के दोनों अपने फ्लिपर्स को यूज करते हैं. एक जो है वो डॉल्फिन जो है स्विमिंग के लिए यूज करती है, और बर्ड भी जो है जो पेंगुइन है वो भी जो है वो यूज करती है विद रिस्पेक्ट टू स्विमिंग. सो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो वन कैन से ना कि द हैबिटेट इज सिमिलर and that resulted in selection of similar adaptive features in different group of organism but towards the same function मेरे बच्चों. एक और एग्जांपल बहुत प्यारा सा है स्वीट पोटैटो का. अब स्वीट पोटैटो इज अ रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन मेरे बच्चों. दिस इज ऑल्सो अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनालॉजी. अब सोचिए, पोटैटो इज अ स्टेम, स्वीट पोटैटो इज अ रूट, बट फंक्शन क्या है? अब एक स्टेम है, पोटैटो स्टेम है, सोलानम ट्यूबरोसम, और स्वीट पोटैटो आइपोमिया बटाटास का ये पार्ट जो है वो रूट है. अब ये दोनों स्ट्रक्चर काम सेम कर रहे हैं, काम सेम. क्या काम है? स्टोरेज ऑफ फूड, राइट. तो पोटैटो स्टेम, स्वीट पोटैटो रूट, फंक्शन सेम, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया ना, राइट. डॉल्फिन मैमल, पेंगुइन बर्ड, डॉल्फिन का 4 लिम्ब और पेंगुइन का 4 लिम्ब, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों फंक्शन सेम कर रहे हैं मेरे बच्चों. एंड इफ दे आर डूइंग सेम फंक्शन, आप समझ लीजिए मेरे बच्चों यहां पे इज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन माय डियर. इसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल.